دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عرش گنگناتے ہوئے رات کو ڈرائیو کرتا گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں گنگنا رہا تھا۔ عرش نے اچانک گاڑی روکی تھی۔ اس کے پیچھے سب گارڈز کی گاڑیاں رک چکی تھیں۔ سر کیا ہوا؟ ایک گارڈ اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ جی سر۔ دعا دیوار کے ساتھ لگ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ چہرہ دوپٹے سے چھپا ہوا، نظریں زمین میں گڑی ہوں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ پکڑے جانے کا خوف اور بھی بڑھ رہا ہو۔ شکر ہے نکل گئی، اب مجھے کوئی پکڑ کر دکھائے، وہ خود سے دھیمی آواز میں بولی، جیسے اپنے دل کو تسلی دے رہی ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے۔ سامنے ایک سایہ ابھرا تھا۔ دعا نے چونک کر سر اٹھایا اور دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، عرش، بازو سینے پر لپیٹے، نظریں اس پر جمی ہوئی، جیسے کب سے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ عرش کی آواز سرد تھی، مگر اس میں چھپی حیرت اور غصے کی چنگاریاں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ دعا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ پل بھر کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو۔ دوپٹے کو اور سختی سے چہرے پر لپیٹا، لیکن اب چھپنا ممکن نہ تھا۔ وہ دعا ہکلائی، الفاظ گم ہو گئے۔ عرش نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ چھپ چھپ کر جانا اب عادت بن گئی ہے۔ ہوا جیسے رک گئی ہو، وقت تھم سا گیا ہو۔ دعا کی نظریں جھک گئیں اور عرش کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصہ ساتھ ساتھ چمکنے لگا۔ دعا کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، جیسے ہر لمحہ اس کے راز کو عیاں کر رہا ہو۔ ہاتھوں کی لرزش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، مگر عرش کی نظریں ایسی تھیں کہ جیسے سب کچھ چیر کر دیکھ رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ عرش کی آواز اب پہلے سے کچھ سخت ہوئی۔ دعا نے بمشکل ہمت جمع کی۔ مجھے جانا تھا، بس یوں ہی۔ عرش ہنسا، مگر وہ ہنسی خالصتاً سے لبریز تھی۔ جو لوگ یوں ہی نکلتے ہیں، وہ یوں ہی دیواروں سے لگ کر نہیں بھاگتے مس دعا۔ اس کا نام عرش کی زبان سے سن کر دعا کی پلکیں لرز گئیں۔ اس نے آہستہ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر عرش نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ ہمت ہے تم میں لڑکی، جو میرے گھر سے نکلی، تم اتنی سیکیورٹی میں، لیکن کیسے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے، چلو میرے ساتھ، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ عرش نے سختی سے اس کا بازو پکڑا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ عرش نے اسے گاڑی میں دھکیلا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کدھر سے بھاگی تم؟ بہت تیز ہو تم، مطلب اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے۔ وہ چپ کر کے چہرہ جھکائے سن رہی تھی۔ آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرے گھر میں بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، اور تم نے ڈھونڈ بھی لی۔ واو، آخر دشمن کی بیٹی ہو، چالاکیوں میں ماہر ہو۔ ویسے کیسے بھاگی، ذرا بتانا پسند کرو گی؟ ابھی فی الحال تو میں تمہارا منہ توڑنا پسند کروں گی، وہ بڑبڑائی تھی۔ جلدی بتاؤ تاکہ میں وہاں بھی سیکیورٹی ٹائٹ کر دوں۔ شاباش، بتاؤ، مجھ سے بات مت کرو، تم نے مجھے اتنی زور سے پکڑا، مجھے درد ہوا۔ عرش نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پر خراشیں تھیں۔ واو، ویسے ایک بازو اور ٹانگ ٹوٹتی تمہاری تو کتنا مزہ آتا نا۔ شکر ہے بچ گئی، تمہارا کیا بھروسہ تھا، ورنہ مجھے پتہ چل چکا ہے۔ مون لائٹ، گھر کی پچھلی دیوار سے چھلانگ لگائی تم نے۔ ویسے دیوار تو وہ کافی اونچی ہے۔ اب دیکھو نا، دشمنوں کی قسمت کتنی اچھی ہوتی ہے، ہر بار بچ جاتے ہیں۔ اب وہاں بھی کرتا ہوں سیکیورٹی ٹائٹ۔ دعا نے اسے گھورا تھا غصے سے۔ میرے گھر سے پھر تم بھاگ کر دکھانا، مر بھی جاؤ گی نا، پھر بھی نہیں جانے دوں گا۔ چپ کرو، خاموش، دماغ کھا گئے ہو میرا۔ ایک تو مجھے درد ہو رہا ہے، اوپر سے تم، وہ غصے سے بولی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، تم اسی کی حقدار ہو، ہونا بھی چاہیے تمہیں۔
ढीठ इंसान, चुप करो, वो दांत पीसते हुए बोली थी। तुम चुप करो, ये जो तुमने भागने की कोशिश की है ना, बहुत महंगी पड़ने वाली है तुम्हें, समझी तुम? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। घर चलो, अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें। आज के बाद एक कदम भी बाहर निकालने के बारे में सोचो की भी नहीं। मैं अपने बाबा के पास जरूर जाऊंगी। इससे पहले तुम्हारी टांगे ना तोड़ी ना तो कहना तुम। ज़ावियर, वो आएगा तो बता दूंगा तुम्हें, जाओ तुम रूम में, अरमगान ने कहा था। हरगिज नहीं। यार, तुझे मुझ पर एतबार नहीं है क्या? अरमगान ने पूछा था। बिल्कुल नहीं, ज़ावियर ने कहा था और अरमगान का मुंह खुला था। तेरे पास लेकर आऊंगा उसे, अब जा। तू हर बार बचा लेता है उससे मेरे हाथों। हाँ, इस बार भी, वो बोलते बोलते रुका था। इस बार फिर खुद की भी सजा सोच लेना, ज़ावियर गुस्से से कहता चला गया था। अरमगान गहरा सांस लेते सोफे पर बैठा था। मेरा दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। एक का गुस्सा खत्म नहीं होता, दूसरे को आता नहीं और तीसरे का कुछ पता नहीं चलता। कहाँ जाऊं मैं, उसने खुद से कहा था। और कुछ देर बाद अर्श की गाड़ी बाहर आकर रुकी थी। उसने दुआ को सख्ती से पकड़े बाहर निकाला था और अपने साथ घसीटते हुए अंदर लेकर जा रहा था। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, दुआ ने रोते हुए कहा था। ये दर्द तो बहुत कम है दुआ बीबी, अभी तो और दर्द दूंगा तुम्हें। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का, बताता हूँ मैं तुम्हें। उसने दुआ को लाकर रूम में धक्का दिया था। वो मुंह के बल नीचे गिरी थी। यहीं रहोगी तुम, भूखी प्यासी, मरो मेरी तरफ से तुम। अर्श ने उसे रूम में लॉक किया था और खुद लाउंज में आकर बैठा था। तेरा ही इंतजार था मुझे, अरमगान ने उससे कहा था। घर के पीछे भी सिक्योरिटी लगवाएं, भाग रही थी ये चालाक लूमड़ी। कल लगवा दूंगा, अभी फिलहाल तुझे कौन बचाएगा? मुझे? अर्श ने अपनी तरफ इशारा किया था। ऑफ कोर्स तुझे। अब क्या कर दिया मुझे मासूम ने? यकीनन ड्रैगन गुस्से में होंगे। मासूम तो कहीं से भी नहीं है तू, और मुझे नहीं पता वो क्यों गुस्से में है ना, उसने बताया। लेकिन ये कंफर्म है कि तेरे बचने के चांसेस कम है। अरे यार, मतलब क्या है? और मैंने क्या किया है यार भाई? मुझे नहीं पता, ये तुझे और उससे पता होगा। और इस बार मैं नहीं बचा रहा तुझे। अच्छा, गुस्सा कैसा है उनका? जैसा होता है, और कैसा? ओहो, मेरा मतलब कि जैसे लोगों को मारते वक्त होता है, या जो वक्ती हो फिर ख़त्म हो जाए। फर्स्ट वाला है, मतलब वाकई खड़ूस गुस्से में है, अर्श ने थूक निकलते हुए कहा था। मैं तो चला सोने, अब तू उसको शक्ल दिखा दे अपनी। यार भाई रुके ना, क्यों? बचा लें यार। फिर मुझे कौन बचाएगा? अरमगान ने कहा था। यार, आपको कुछ नहीं कहते वो, मैं नहीं बचा रहा। यार, रूम में नहीं जा सकता, वो लोमड़ी लॉक है और मैं उसको मुंह नहीं लगना चाहता, और जहाँ बैठा तो भाई पकड़ लेंगे, इसलिए आप ही बचा सकते हैं मुझे। अच्छा, और मैं क्यों बचाऊंगा तुझे? अरमगान ने आईब्रोज का पूछा था। क्योंकि आप प्यार करते हैं मुझसे। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, यार बचा लो ना, अगली बार नहीं करूँगा ऐसा वैसा कुछ भी। तेरी गारंटी नहीं है यार, मैं कुछ चीज़ हूँ जो गारंटी होगी मेरी। कमाल करते हो आप भी, तुझ पर मुझे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। अच्छा ना, इस बार बचा लो, अगली बार देखेंगे। मतलब तू फिर से करेगा? यार बचा लो, अगर वो आ गए और मुझे मारा, दर्द आपको ही होगा। नहीं भला, मार तू खाएगा तो मुझे दर्द कैसे होगा? आप परेशान हो जाते हो ना, मुझे ज़रा सा भी कुछ होता है तो। बिल्कुल नहीं यार, झूठ मत बोलो। अरमगान, अर्श आया? ज़ावियर ने आवाज़ दी थी और अर्श तेजी से सोफे के पीछे छुपा था। या अल्लाह, बचा ले हलाकू खान से, अर्श ने दुआ करते कहा था। नहीं, अभी नहीं, तू जा रूम में, सुबह बात कर लेना उससे, अरमगान ने आवाज़ देकर उससे कहा था। देखो ना, चले गए क्या? अर्श ने सोफे के पीछे से जरा सा मुंह निकालते सरगोशी सी आवाज में पूछा था। हाँ, चला गया। नहीं, देखे ना सही से, आ गए तो। इतनी देर नहीं रुकता वो, आ जा बाहर। अर्श उठा था।
यार बचा लो ना, इतनी मिन्नतें तो मैंने कभी खुद की नहीं की जितनी आप करवाते हो। सोचते हैं, अरमकान ने चलते चलते कहा था और अर्श उसके पीछे पीछे चल रहा था। क्या सोचते हैं बताओ, बचा रहे हो या नहीं? देखें मेरा चेहरा मुझे बहुत प्यारा है और इस बॉडी पर लोग मरते हैं, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेरे पास नहीं है या तेरे पास? अरमकान ने अपने रूम में दाखिल होते कहा था। अर्श भी इसके रूम में आया था। अरमकान भाई यार, ओके ठीक है। क्या ठीक है? ऐसा करो, आप मुझे अपना भाई नहीं बेटा समझकर बचा लो, अब तो ठीक है ना? लेकिन बेटे की गलती पर तो सजा देते हैं, तो क्या मुझे अच्छा बाप बना रहा है तू? अरे यार ठीक है, एक मेरा अच्छा बाप, दूसरा मेरा खड़ूस बाप, यार बचा लो। अर्श ने अब हार मानते हुए कहा था और अरमकान हंस दिया था। ओके, सुबह का नाश्ता बनाओगे तुम मेरे लिए, फिर डील डन करो, अरमकान ने कहा था। यार मुझे कहाँ बनाना आता है अरमकान भाई, यार आप आज उल्टे ट्रैक पर चल रहे हो, तो तू कब सीधे पर चलता है? मुझे पता है आप बचाओगे मुझे हर सूरत। वो छलांग लगाकर उसके बेड पर लेट चुका था। उठ मेरे बेड से, अरमकान ने कहा था। नाम लिखा है आपका और मैंने यहीं सोना है। क्यों? जा अपने कमरे में, मुझे नहीं लगना उस लूमड़ी के मुंह, यार समझा करो। ओके फाइन, जूते उतार। मुझसे नहीं उतारे जाते, अगर मेरे बेड पर सोएगा तो जूते उतारेगा। यार मेरे ब्रांडेड जूते हैं, क्या हो गया है आपको? मैंने उठाकर तुझे बाहर फेंक देना है अर्श के बच्चे। मुझे नहीं पता। अर्श उल्टा होकर लेट गया था। अर्श देख, अपने बेड पर तू जैसे मर्जी सो, चाहे जूते पहन कर, लेकिन मेरे बेड पर अभी सोया है तो उतार जूते। यार क्या मसला है आपका? सोने दो, आपके बेड पर हीरे लगे हैं जो जूते पहनकर नहीं सो सकता। हाँ लगे हैं, उतार अब। सही कोई होंगे आप, ड्रैगन का नंबर भी काट गए हैं। शट अप। अर्श ने जूते उतारे थे और अरमकान के सीने पर सर रखा था। देख, मुझसे दूर होकर सो, आज कुछ ज्यादा ही मसले नहीं हो रहे आपको? और चुप करें, इधर ही सोना है मैंने। अर्श उससे चिपक कर सो चुका था। या अल्लाह मुझे सब्र दे, अरमकान ने कहा था। हाँ मुझे भी, अर्श ने कहा था। ज़ावियार ने आहिस्ते से अपने रूम का दरवाज़ा खोला था। कमरे में अंधेरा था। ज़ावियार ने कमरे की सारी लाइट्स ऑन की थी और दरवाज़ा लॉक किया था। लिटिल एंजल, वो आहिस्ते से चलता हुआ उसके पास गया था। वो तब से कोने में बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी। मेरी लिटिल एंजल। ज़ावियार उसके पास बैठा था और वो झटके से उससे दूर हुई थी। नूर जान, क्या हुआ? ज़ावियार ने अपना गुस्सा जब्त कर रखा था। हमारे पास मत आए, वो रोते हुए बोली थी। लिटिल एंजल इधर आओ मेरे पास, ज़ावियार ने प्यार से कहा था और नूर ने नफी में सर हिलाया था। नूर देख, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, शराफत से आ जाओ मेरे पास, तो हमें भी मार देंगे, वो रोते हुए चिपियों के दरमियान बोली थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नूर, क्यों करूँगा मैं ऐसा, और इधर आओ मेरे पास, वो गुस्से से बोला था। नूर, लिटिल एंजल आ जाओ, बात करते हैं ना मेरी जान। नूर ने रोते हुए नफी में सर हिलाया था और ज़ावियार गुस्से से उसके पास गया था और उसे अपनी गोद में उठाया था। छोड़े हमें, आप कातिल हैं, आपने मार दिया उन्हें, आप हमें भी मार देंगे, वो रो रही थी। शट अप, एक लफ्ज़ भी और मत बोलना नूर, वरना मेरे सब्र जवाब देगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम मुझे, वो दबे हुए गुस्से में बोला था। छोड़े हमें, नहीं रहना मैं आपके साथ, वो रोते हुए बोली थी। ज़ावियार ने उसे बेड पर लिटाया था और उसका हिजाब खोलने वाला था कि नूर ने उसका हाथ पकड़ा था। हमें हाथ भी मत लगाइएगा। जस्ट शट अप, एक लफ्ज़ भी बोला ना अब तुमने, देख लेना फिर, और होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? हाँ, तुम कभी नहीं रोक सकती मुझे खुद के करीब आने से, वो गुस्से से बोला था। ज़ावियार ने झटके से उसका हिजाब खोला था। हमारे करीब मत आइएगा, हमें नहीं बात करनी आपसे, आप कातिल हैं, वो रोते हुए उससे दूर खिसकी थी। ज़ावियार ने उसका बाजू पकड़े उसे खुद के करीब किया था। मेरी दुनिया में या तो मेरी मर्जी चलती है या कोई नहीं बचता, और तुम्हें शायद अब भी अंदाज़ा नहीं है कि जब मैं किसी को चाहता हूँ तो उसे खुद से दूर होने की इजाज़त नहीं देता, कभी नहीं।
اور تم تو میرا عشق ہو، 1 انچ بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ نہیں ہم نہیں، برے ہیں آپ، بہت برے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یہی سمجھ لو تم، اور یہیں بیٹھنا، کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ ہمیں نہیں کھانا، سمجھے آپ؟ وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ نور بدتمیزی مت کرو، اور کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا، ہر صورت دیکھتا ہوں میں کیسے نہیں کھاتی تو۔ وہ کہتے ہی دروازہ بند کیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نور وہیں بیٹھی پھر سے رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ زاویار کچن میں گیا تھا، اس نے کھانا گرم کیا تھا اور واپس روم میں آیا تھا۔ اس نے بیڈ پر کھانا رکھا تھا۔ چلو شاباش، کھا لو کھانا۔ ہمیں نہیں کھانا نا، چلے جائیں، ہمیں نہیں دیکھنا آپ کو اس وقت، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو ساری زندگی مجھے ہی دیکھنا ہے لٹل اینجل، تم نے جو مرضی کر لو تم۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ نور، مجھے غصہ آ رہا ہے اب۔ زاویار کھانا لے کر اس کے پاس گیا تھا اور پہلے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ لو پانی پیو، ہم سے دور ہو، ہم نے کہا ہے، ہمیں خوف آ رہا ہے آپ سے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پانی پیو نور، زاویار نے کہا تھا، اور نور نے پانی کا گلاس اٹھا کر غصے سے نیچے پھینکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہاں، دماغ صحیح ہے تمہارا؟ ہاں، خراب ہو چکا ہے ہمارا دماغ، خراب، کیونکہ ہم ایک قاتل کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمیں لگا تھا ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، لیکن نہیں، آپ قاتل ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ گلاس زمین پر گرا، شیشے کے ٹکڑے قالین میں بکھر گئے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ہانپ رہی تھی جیسے دل کی دھڑکن سانسوں سے بھی آگے نکل چکی ہو۔ زاویار ساکت کھڑا رہا چند لمحے، بس چند لمحے، پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ آنکھوں میں وہی سرد شعلے تھے جو تب ابھرتے تھے جب پینتھر اپنی اصل میں آتا تھا۔ بس بہت ہو گیا اب نور، وہ دھاڑا نہیں تھا، لیکن اس کی آواز میں ایسا ضبط تھا جو دیواریں ہلا دیتا۔ نور سہم کر پیچھے ہٹی، مگر زاویار کا قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ کیا سمجھا ہے تم نے کہ تم جو چاہو کرو گی؟ مجھے قاتل کہو گی، مجھ پر چیخو گی اور میں چپ بیٹھا رہوں گا؟ وہ اس کے قریب ہوا اور سامنے آیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا نور، ہاں، اور اب میری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بھاری اور گمبھیر تھی، جیسے اندر کا طوفان لبوں تک آ چکا ہو۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، تمہارا خوف، تمہارا مجھے دور دھکیلنا، سب کچھ، لیکن اب نہیں۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا، آواز کمرے میں گونجی اور نور کانپ گئی۔ نور نے لب کھولے مگر زاویار نے انگلی اٹھا کر روکا۔ ایک لفظ بھی نہیں نور، ایک لفظ بھی، ورنہ یاد رکھنا پینتھر جب اپنی حد کھو دیتا ہے تو سامنے والا کبھی خود کو پہچان نہیں پاتا۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا، سانس نور کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اگر تم نے پھر مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا میں تمہیں اس دنیا سے دور کر دوں گا، مگر خود سے نہیں۔ نور نے رو کر نظریں چرائیں اور زاویار نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تم میری ہو، میری، اور اب 1 انچ بھی دور نہیں جانے دوں گا۔ اب کوئی بحث نہیں، کوئی آنسو نہیں، تم چپ رہو گی اور کھانا کھاؤ گی ابھی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور کھانے کی پلیٹ پھر سے اس کے سامنے رکھی۔ نور نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر نظریں زاویار پر گاڑ دیں۔ آنکھوں میں اب آنسوؤں کے ساتھ ساتھ الزام بھی تھا۔ آپ چاہتے ہیں ہم کھانا کھائیں، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ زاویار کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی مگر وہ خاموش رہا۔ نور دھیرے سے بولی، جیسے ہر لفظ دل چیر رہا ہو، آپ نے ہمارے سامنے کتنے لوگوں کو مارا ہے زاویار؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سینہ تھاما۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے گولیاں چلائیں، چیخیں سنی، خون دیکھا ہم نے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں، کھانا کھائیں، جیسے سب ٹھیک ہے۔ زاویار کی مٹھیاں سختی سے بھیج چکی تھی۔ نور نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ قاتل ہیں زاویار، ہمیں مت کہیں کہ ہم آپ سے نہ ڈریں۔ جو آدمی پلک جھپکتے ہی جان لے سکتا ہے اس سے محبت نہیں ہوتی، خوف ہوتا ہے، اور ہمیں خوف آ رہا ہے آپ سے۔
जावियार का ज़ब्त टूटने के करीब था। वो झुककर नूर के बिल्कुल सामने आया, आंखें सुर्ख होने लगी थीं। तुम्हें क्या लगता है नूर, जिन्हें मारा वो सब बेगुनाह थे? जो मैंने किया बगैर वजह की किया। नूर खामोश रही, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने वो सब किया ताकि तुम महफूज रहो, तुम्हारी जिंदगी बच जाए, तुम पर कोई निगाह भी न डाले अपनी। तुम जो आज सांस ले रही हो वो उन गोलियों की कीमत पर है। तुम जो मेरे सामने महफूज बैठी हो वो भी इसी वजह से है। जावियार लफ्ज़ चबाते गुस्से से कह रहा था। वो नूर के सामने आवाज़ ऊंची नहीं करना चाहता था, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी। और तुम हो कि मुझे ही कटहरे में खड़ा कर रही हो। नूर ने थोड़ी हिम्मत जमा की। महफूज, ऐसी हिफाजत जो हमें आपसे ही खौफज़दा करते। जावियार की आंखों में आग सी दहकने लगी। मोहब्बत की वही तारीफ है नूर जो मैं तुमसे करता हूँ, जो दुनिया को भस्म करते मगर तुम्हें खराश ना आए। और तुम मुझे ही दुश्मन समझने लगी। वो लम्हा लम्हा नूर के करीब आ रहा था, जैसे गुस्से, दुख और जुनून ने उसे अंदर से चीर दिया हो। नूर पीछे हटी और आखिरी हद पर आकर चिल्लाई, हमें रहने दे अकेला। नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो बंदूक की नाली से शुरू हो। हमें नहीं रहना आपके साथ। ये सुनना था कि जावियार जैसे लम्हा भर में शोला बन गया। क्या कहा तुमने? वो शदीद गुस्से से पूछ रहा था। नूर पीछे हटी, मगर वो फौरन उसके सामने आ खड़ा हुआ। बस अब एक लफ्ज़ और नहीं। उसके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा था। बार बार मत कहना नूर कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। सुन रही हो तुम? ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं, कभी नहीं। तुमने शायद मेरी खामोशी को कमजोरी समझ लिया है। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी हो नूर, मेरी। और जो मेरा होता है ना, उसका रास्ता सिर्फ मेरी तरफ जाता है। नूर ने रोते हुए कहा, हम डर रहे हैं आपसे और हम दूर जाना चाहते हैं, प्लीज। जावियार ने झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसे खुद के करीब किया, इतना करीब कि वो उसकी सांसों में भी कैद हो गई। बार बार दूर जाने की बात मत किया करो नूर। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये बातें सुनता रहूँगा? नहीं नूर, ये इश्क है और इश्क में सिर्फ दिल नहीं जलते, अना भी दहकती है। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अब मजबूर कर रही हो मुझे। नूर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उसके अल्फाज से पिघल रही हो, मगर डर अब भी आंखों में था। जावियार ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम मेरे बगैर जीने की बात करती हो, दूर जाने की? नहीं नूर, तुम्हें मरने दूंगा, तब भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, 1 इंच भी नहीं, समझी तुम? वो साकत हो गई। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी हो और रहोगी, चाहे ये तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। तुम्हें मेरे करीब रहना ही पड़ेगा। फिर जावियार ने गहरी सांस ली और उसे थाम कर सोफे पर बिठा दिया। अब बैठो, रो लो, चीख लो, जो मर्जी करो, लेकिन अब ये दोबारा ना सुनूं तुम्हारी जुबान से, वरना जो जावियार तुमने कभी नहीं देखा वो तुम्हारे सामने होगा। जावियार ने प्लेट उसके सामने रखी। खाओ। नहीं खाना हमें। जावियार की आंखों में एक पल को हैरत चमकी, फिर गुस्सा उभरा, दबाया हुआ मगर सुलगता हुआ। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है नूर, तभी तुम हर बात पर जिद करने लगी हो। वो दबे हुए गुस्से में बोला। नूर ने भीगे लहजे में हिम्मत की, हम मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। बस एक लम्हे में जावियार की मुट्ठियां भींच गईं, आवाज गूंजी, गरजदार धाड़ जैसी। बस वो एक कदम आगे बढ़ा। अब बकवास बंद करो नूर। नूर सहम कर पीछे हटी, लेकिन जावियार झुककर उसके बिल्कुल सामने आया, नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो, मेरे फैसले रद्द कर सकती हो? तुम्हारी ये जिद, ये रोना, ये तमाशे सब मेरे सब्र को आजमा रहे हैं नूर। उसने कुर्सी एक तरफ धकेली, आवाज में जुनून और तकलीफ दोनों छलकने लगे। तुमने क्या सोचा कि तुम मरने की बात करोगी और मैं चुप रहूंगा?
उसने उंगली उठाकर सख्ती से कहा, मरना है तो मेरी इजाजत से, मेरी मर्जी से, क्योंकि अब तुम्हारी सांसों पर भी मेरा हक है। नूर की आंखों में साकत वहशत छा गई। ज़ावियार ने प्लेट उठाकर उसके सामने रखी। यहीं खाना खाओगी, मेरी मौजूदगी में, मेरी आंखों के सामने, और अगर नहीं खाओगी। उसका लहजा और नीचे गिरा, धमकी में लिपटा, जनून, तो मैं खुद खिलाऊंगा। और यकीन मानो, जब मैं कुछ ज़बरदस्ती करता हूँ ना, तो इज्जत से करना भूल जाता हूँ। नूर लरज गई, आंसू थम गए, जुबान बंद हो गई। ज़ावियार ने सर्द नजरों से उसे देखा। चुपचाप बैठो और खाओ, या मेरे हाथों से खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो ज़ावियार नहीं था, वो पैंथर था, जिसके लिए चाहत भी उसकी मर्जी से थी और सजा भी। नूर ने ज़ावियार की तरफ देखा। आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। हम नहीं खाएंगे, वो फिर से बोली। सोच लो लिटिल एंजल, मैं बात की गारंटी नहीं दे रहा। नहीं खाना हमें, वो नजरें झुकाए बोली। और ज़ावियार ने निवाला बनाए अपने मुंह में डाला था और नूर को खींचे वो उसके लबों पर शिद्दत से झुका था। वो अपने हाथ पांव हिलाती उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने भी पैंथर था। वो जो चाहता था करता था। वो शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों में दबाए हुए था और निवाला उसके मुंह में डाले वो पीछे हो चुका था। नूर ने गुस्से से उससे देखा था। कितने गंदे हैं आप, देख लो लिटिल एंजल, फिर अपनी जिद का नतीजा। और अब मैं ऐसे ही खिलाऊंगा। हमें नहीं खाना, वो रोते हुए बोली थी। आज तो मैं ऐसे ही खिलाऊंगा। पानी, पानी, देखो लिटिल एंजल, पानी का गिलास तो तुमने तोड़ दिया, और जो चीखी वो अलग। अब जल्दी से खाना खाओ ताकि मैं तुम्हें सजा दे सकूं इस सब की। नूर ने बेयकीनी से उससे देखा था। सजा? उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। वो ज़ावियार से डर चुकी थी। बिल्कुल, चलो खाना खाओ। कि कैसी सजा? पहले खाना खाओ ना, फिर बताता हूँ। और अगर ये पूरा खाना ना खाया तुमने, तो याद रखना लिटिल एंजल, मैं बहुत अच्छे से खिलाता हूँ। फिर ट्रेलर तो देख ही चुकी हो, वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता। उसके कान के करीब झुकता उसे डरने पर मजबूर कर गया था। और नूर ने अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाया था। पैंथर ने मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखा था, क्योंकि अगर वो नूर पर गुस्सा करता तो पता नहीं वो क्या करती। नूर ने मुश्किल से रोते हुए खाना खाया था। ज़ावियार ने सही टेबल से पानी गिलास में डालते उसे पकड़ाया था। पियो इसे। नूर ने चुपचाप पी लिया था और डर कर उससे देखा था। ज़ावियार सोफे पर बैठ चुका था। नूर खामोशी से उसे देख रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। हमें, वो भी बोलती कि पैंथर बोला था। जाओ और सामने जाकर मेरी तरफ चेहरा किए एक टांग उठाए, दोनों कानों को पकड़कर खड़ी हो जाओ। नूर ने बेयकीनी से उससे देखा था। जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई सख्त सजा दूं। जाओ, वो शदीद गुस्से से बोला था कि नूर जाकर खड़ी हो गई थी। आंखों से तेजी से आंसू भी निकल रहे थे। अगर एक आंसू भी तुम्हारा अब निकला ना, तो अगली सजा वो दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। नूर, बंद करो रोना। वो गुस्से से धाड़ा था और नूर अंदर तक कांपी थी। उसने अपने आंसू पीछे धकेले थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात, बंद करो ये रोना। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा ऊंची थी। खुद ही आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं रोकने की। नूर रोते हुए बोली थी और ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा आया था। उसका दिल चाहा था अपना सर कहीं दे मारे। ज़ावियार ने उसके पाँव के नीचे कांच रखा था। लिटिल एंजल, अगर तुमने पाँव नीचे रखने की कोशिश की तो ये कांच तुम्हारे पाँव में चुभ सकता है, इसलिए सोचना भी मत। वो सख्त लहजे में कहता लाइट ऑफ करता बेड पर लेट चुका था। नूर ने रोते हुए उसे देखा था। कितने बुरे हैं आप ज़ावियार, नूर दिल में सोच पाई थी। उसे ये नहीं पता था कि वो कितना जालिम है। अभी जो सजा उसने नूर को दी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने छोटी सी सजा उसे दी थी। वो दोनों कान पकड़े एक टांग उठाए उसे ही देख रही थी।
कभी वो इधर होती तो कभी उधर के कहीं गिर ही ना जाए। अर्श ने नींद में अरमगान को जोर से पकड़ा था। अर्श पागल हो गया है, छोड़ मुझे, लंबी है हाइट वॉक जैसे फायर। अर्श ने नींद में गुनगुनाते हुए कहा था। मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है अर्श के बच्चे, छोड़ मुझे, अरमगान ने गुस्से से कहा था। झूमता चलता सबको करे इंस्पायर, सोते सोते कोई भी गाना बना देता है बदतमीज इंसान, अरमगान ने खुद से कहा था। अर्श एक लफ्ज भी अब बोला ना, पिटेगा तू मेरे हाथों से, बता रहा हूँ मैं, अरमगान ने उसे वार्न किया था। गलियों में आया तो बीट हो गई टाइट, लोग कहने लगे शेड्स ऑन आईज ब्राइट। अर्श फिर से गुनगुनाया था और अरमगान ने पानी का गिलास उसके मुंह पर फेंका था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था। तमीज नहीं है यार भाई, आपको ऐसे उठाते हैं किसी को नींद से, अर्श ने अरमगान को घूरते हुए कहा था। तो नींद में भी कोई गाना नहीं गाता, वो भी अच्छी भली ऊंची आवाज में कि दूसरा जाग जाए। देखे भाई, ऐसे इल्जाम न लगाए मुझे मासूम पर। इल्जाम? ये इल्जाम नहीं, सच है। बताऊं क्या तुझे क्या गा रहा था, अरमगान ने उसे घूरा था। अच्छा यार, अब बता दें क्या गा रहा था ताकि अगला गाना ही रिलीज कर दूं। पता नहीं क्या वॉक जैसे फायर, और गलियों में पता नहीं क्या बीट हो गई तेज, और लोग कहते बंदा है पता नहीं क्या, अरमगान झुनझुलाया था। अच्छा आइडिया दिया आपने, सुबह सोचूंगा, अभी सोचे चले, नींद आ रही है मुझे, सोते सोते जगा दिया, दफा हो जा मेरे रूम से। हाँ, आपको नींद नहीं आ रही तो आप जा सकते हैं बाहर, क्योंकि मुझे बहुत आ रही है। गुड नाइट। अर्श फिर से आंखें बंद किए सोया था। मैंने सुबह तुझे नहीं पहचाना ज़ावकार से, आज तूने जितना तंग किया है मुझे। वो सो चुका था। कहाँ फंस गया मैं, अरमगान रोने वाला हुआ था। बाबा पर चला गया है ये, सेम टू सेम, अरमगान कहते ही आंखें बंद कर गया था। रात के 2 बज रहे थे जब कमरे में नूर की चीख गूंजी थी और वो गिरी थी। ज़ावकार तेजी से उठा था। वो सोया ही नहीं था। नूर के बगैर अब कहाँ नींद आती थी उसे, और उसके पास गया था। कांच उसकी टांग में लग चुका था। वो रो रही थी। नूर, लिटिल एंजल। ज़ावकार ने उसे अपनी बाहों में भरा था और बेड पर बिठाया था। वो ऊंचे ऊंचे रो रही थी। ज़ावकार फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। इधर दिखाओ मुझे। हमें ना लगाएं कुछ, हमें बात नहीं करनी आपसे, आप बहुत बुरे हैं, वो रोते हुए बोली थी, और ज़ावकार ने उसकी टांग देखी थी। हमें ना लगाएं हाथ, वो रोते हुए कह रही थी। ज़ावकार उसके जख्म से नरमी से कांच निकालते ऑइंटमेंट लगा रहा था। वो अब मज़ीद रोना शुरू हो चुकी थी। नहीं करें, हमें दर्द हो रहा है। ज़ावकार ने उसके जख्म पर पट्टी की थी और फर्स्ट एड बॉक्स जगह पर रखकर उसके पास आया था। चलो सो जाओ, हमसे बात मत करें। नूर जान, चलो सो जाओ, सुबह तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, ओके, लेकिन अभी सो जाओ। ज़ावकार ने उससे लिटाया था और खुद उसके साथ लेट चुका था। नूर उससे दूर हुई थी और ज़ावकार ने खींच कर उसे अपने हिसार में कैद किया था। दूर हो, सो जाओ, इतनी सी सजा पर तुम रो रही हो, और दोबारा तुम बोली और मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगी तो जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा फिर मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा, इसलिए चुप करके सो जाओ। पहले बताएं, सुबह पूछ लेना सब, ओके लिटिल एंजल, अभी सो जाओ। ज़ावकार ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाई थी और आंखें बंद कर गया था। ज़ोहान सुबह थोड़ी लेट उठा था। उसने शॉवर लिया था और मिरर के सामने खड़ा तैयार हो रहा था कि जब उसकी नज़र बेड पर पड़ी, वहाँ दनीन नहीं थी। वो मुड़ा। दनीन, प्रिंसेस कहाँ हो? उसने कमरे में चेक किया था, फिर पूरे घर में, जब वो उससे कहीं नहीं मिली थी। प्रिंसेस कहाँ हो? वो बाहर की जाने पड़ा था और गार्ड से पूछा था। सर, ड्राइवर को पता होगा, आज सुबह सुबह ही वो निकला था, 4 बजे का वक्त होगा। ओके, ज़ोहान ने गाड़ी निकाली थी और साथ ही ड्राइवर को फ़ोन किया था। किधर है दनीन, जल्दी बताओ। सर, उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि मैं उनको छोड़ आऊँ, तो मैं छोड़ आया। व्हाट द हेल? उसने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारा था। कहाँ छोड़ कर आए हो, उससे जल्दी बताओ। ड्राइवर ने उसे जगह बताई थी। वो तेजी से ड्राइव कर रहा था। इतनी हिम्मत तुम्हारी दनीन, शाहनवाज, मुझे धोखा देकर निकल गई तुम घर से।
आज तुम्हारे टुकड़े ना किए ना तो देखना तुमने हिम्मत भी कैसे की ये सब करने की। वो गुस्से से चिल्लाया था और गाड़ी एक होटल के बाहर रोकी थी। वो गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोलता, उसे पाँव से बंद करता अंदर की जाने पड़ा था। हल्की बियर्ड, आंखों पर काला चश्मा, रेड जॉगर्स, ब्लैक ट्राउजर शर्ट में वो इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़ा था। जोहान ने दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रखा था। वो सुर्ख जॉगर्स के साथ लंबे कदमों से आगे बढ़ा था। चश्मे के पीछे छुपी आंखें होटल की हर चीज को स्कैन कर रही थी, शिकार तलाश कर रही थी। एक्सक्यूज मी सर, एक मजबूत और प्रोफेशनल आवाज ने उसके कदम रोकने की कोशिश की। रिसेप्शन काउंटर पर मौजूद मैनेजर सलीके से तैयार, लेकिन चेहरे पर साफ लिखा था, ये वो मेहमान नहीं है, ये तूफान है। जोहान की गर्दन हल्की सी मुड़ी, चश्मा नीचे सिरकाया, आंखों से उसे सीधा देखा और हनकारा भरा, जैसे शेर किसी खरगोश को देखे। हाँ सर, आप किससे मिलने आए हैं? आप ऐसे इस तरह अंदर नहीं जा सकते। जोहान का कहकर निकला, मगर वो हंसी नहीं थी, वार्निंग थी। ऐसी हंसी जो बंदे को याद दिलाती है कि मौत का वक्त किस टोन में आता है। तुमने मेरा नाम सुना है कभी? द फाल्कोन। मैनेजर का चेहरा एक लम्हे को सफ़ेद पड़ गया, हाथ में पकड़ा रजिस्टर कांपने लगा। आई एम सॉरी सर, आई डिडंट रिकॉग्नाइज। जोहान ने हाथ उठाकर चुप करा दिया। दनीन शाहनवाज देखो किस रूम में है। उसकी आवाज़ में ऐसा एतमाद था जैसे उसे जवाब की ज़रूरत ही ना हो, बस तस्दीक चाहिए हो। मैनेजर ने नज़रें झुकाईं, कंप्यूटर पर नज़रें दौड़ाईं, हाथ कांप रहे थे, आवाज़ पर मुश्किल निकली। सर, जहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं आई। जोहान साकत हुआ एक लम्हे के लिए, चश्मा उतारा, नजरें मैनेजर की आंखों में गाड़ दी। चेहरा सख्त, जबड़े जकड़े हुए और आवाज़ जैसे बर्फ की धार हो। झूठ मत बोलो वरना जुबान काट दूंगा। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे फौरन। मैनेजर का रंग एकदम फक। उसने फौरन रिसेप्शन के पीछे पड़ा दराज खोला, चाबी निकाली और एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। सर, वो यहाँ प्लीज आइए। जोहान ने कदम बढ़ाए, हर कदम में धमक थी, जैसे हर ईंटों से पहचानती हो। कमरा खोला गया, सिक्योरिटी रूम, स्क्रीन्स की कतार, कैमरों की छिलकियाँ और जोहान का सब्र तेजी से खत्म हो रहा था। 4 घंटे पीछे जाओ, सुबह 4 बजे से हर एंगल दिखाओ। मैनेजर ने कांपते हाथों से क्लिक्स किए, स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी और फिर एक मंजर रुक गया। दनीन काले पेंट कोट में, चेहरे पर संजीदगी, वो होटल के बाहर गाड़ी से उतरी थी, मगर शायद वो अकेली नहीं थी। जोहान ने महसूस किया था लेकिन देखा नहीं था किसी को उसके साथ। फिर वो होटल के अंदर बढ़ी और ड्राइवर चला गया। जैसे ही ड्राइवर गया, वो होटल से बाहर निकली और अचानक उसके साथ एक सूट पहने शायद जैसे शख्स था। चेहरा वाज़ेह न था, मगर जोहान के अंदर कुछ हुआ था, उसे नहीं समझ आया था। जूम करो। चेहरा थोड़ा और वाज़ेह हुआ, साया जैसे धुआं बनकर छट गया हो। जोहान की सांस रुक गई। जोहान ने टेबल पर जोर से खून सा मारा, स्क्रीन पर दरार आ गई। वो गुस्से से बाहर की जानिब बढ़ा था। मैनेजर डर कर रह गई थी। वो तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की थी। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। हिम्मत भी कैसे की तुमने दनीन मुझे धोखा देने की? आज तुम बच कर दिखाओ मुझसे, वो गुस्से से कह रहा था और गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी रुकी थी। उसकी गाड़ी के पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी रुक चुकी थी। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला था और अभी वो आगे बढ़ता जब सामने गार्ड्स ने फायर करना शुरू किए थे। उसने भी अपनी गन निकाली थी और गार्ड्स को 2 उंगलियों से इशारा किया था। उसके गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेरा था और गोलियां चलाते वो आगे बढ़ रहे थे। वो घर के अंदर पहुंच चुका था गार्ड्स की मदद से। सामने खालिद शाहनवाज खड़ा था। कहा लड़के, निकलो मेरे घर से। अपनी बकवास बंद रख, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। वो गुस्से से ठाड़ा था।
आवाज नीचे रख, वो मेरी बेटी है खालिद शाहनवाज की, वो किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएगी। खालिद शाहनवाज ने कहा था, वो दनीन जोहान सिकंदर है, वो जाएगी यहाँ से और उसे मैं लेकर जाऊंगा तेरे सामने। वो दनीन शाहनवाज है लड़के, वो मेरी बेटी है, वो किसी सूरत नहीं जाएगी, तुम उसे नहीं ले जा सकते। देखते हैं फिर, तेरी आंखों के सामने उसे लेकर जाऊंगा यहाँ से, जोहान ने गुस्से से कहा था। रिफा शाहनवाज खामोशी से सब देख रही थी। गार्ड्स, जोहान ने आवाज दी थी, पकड़ लो इस घटिया इंसान को, जोहान ने कहा था और दनीन के रूम की तरफ बढ़ा था। वो कमरा बाहर से लॉक था जो खालिद शाहनवाज ने किया था। खालिद शाहनवाज हंसा था जबकि जोहान ने गुस्से से लॉक पर फायर किया था और दरवाज़ा खुल चुका था। वो भी अंदर ही बढ़ा था कि दनीन ने कुशन उस पर फेंकना शुरू किए थे। वो तेजी से साइड हुआ था। पागल हो गई हो तुम, क्या कर रही हो ये? जोहान ने सख्त गुस्से से कहा था। क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, वो रोते हुए बोली थी। दनीन देखो, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ पड़ा है और मत करो, चलो वापस। नहीं जाऊंगी मैं, जाओ तुम यहाँ से, वो रोते हुए चीखी थी। जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी। हिम्मत कैसे की तुमने मुझे धोखा देकर जहाँ आने की? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, वो गुस्से से ठाड़ा था। चले जाओ जोहान यहाँ से, प्लीज जाओ, वो रो रही थी। हरगिज नहीं, उठो चलो, तुम्हें वापस जाकर बताता हूँ। आखिर क्यों नहीं सुनते हो तुम मेरी कोई बात? जाओ ना यार जोहान, प्लीज जाओ, मैं मर जाऊंगी, जाओ। वो शिद्दत से रो रही थी। वापस चलो ना जरा तुम, अच्छे से तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है, जो मर्जी से सजा दे देना, लेकिन अभी जाओ प्लीज जोहान, जाओ ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें। वो बोलते बोलते रुकी थी। क्या बोलो? वजह बताओ, क्यों धोखा देकर निकली घर से? क्यों? आखिर क्यों आई हो तुम यहाँ? वो उसके करीब खड़ा गुस्से से पूछ रहा था। मेरे बाबा का घर है, मैं आऊंगी यहाँ, लेकिन तुम जाओ। ठीक है फिर, जाओगी तो तुम मेरे साथ ही, जो मर्जी हो जाए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम प्लीज जाओ और दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आओ ना, प्लीज मत आओ, वो रोते हुए बोली थी। जोहान उसके मजीद नजदीक गया था, उसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। क्या हुआ है? सच बताओ, क्या बात है? कैसा खौफ है ये इन पिल्ली आंखों में जो मैं देख रहा हूँ? किस चीज से खौफ आ रहा है तुम्हें? वो अपना गुस्सा जब्त करता नरमी से पूछ रहा था। कुछ नहीं है, तुम जाओ और दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, मुझे छू मत, प्लीज मेरी तरफ तुम देखना भी मत, प्लीज ऐसा समझ लेना कि मैं मर गई, वो रोते हुए बोली थी। उसके चेहरे पर पसीना था और जोहान ने उसके गिर्द हिसार बनाया था। पागल हो गई हो तुम प्रिंसेस? होश में तो हो तुम? क्यों डर रही हो इतना? क्या चीज़ है जिसका तुम्हें इतना खौफ है? क्योंकि ये मेरा खौफ नहीं है ना। कौन है इसके पीछे, बताओ मुझे, वो उसकी थोड़ी पकड़ते नरमी से पूछ रहा था। दनीन को फिर से वही याद आया था। देखो तुम जाओ, कोई चीज़ नहीं है, तुम बस मुझसे दूर रहो, मेरे पास नहीं आना, जाओ और अपना ना ख्याल रखना, इधर उधर देखना। अच्छा जाओ अब। नजर क्यों नहीं मिला रही मुझसे? देखो मेरी तरफ, क्यों नहीं देख रही हो? सच बताओ प्रिंसेस, मुझे सच सुनना है। किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी प्रिंसेस को खौफ दिलाए? कौन है वो जो तुम्हें खौफजदा कर रहा है? बताओ। नहीं, कोई नहीं है, तुम जाओ। जाते क्यों नहीं हो? जाओ ना तुम, वो उसे धक्के देते हुए बोली थी। चुप, बिल्कुल चुप, बात सुनो मेरी, इधर देखो। जोहान ने उसे अपने हिसार में कैद किया था, लेकिन वो अभी भी उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी। बताओ दनीन, क्यों कर रही हो ऐसे? अगर अभी तुम ना बोली ना तो उठा कर ले जाऊंगा मैं तुम्हें। बताओ क्यों कर रही हो ऐसे, जैसे कि तुम्हें किसी चीज़ का बहुत खौफ हो। मैं हूं ना, फिर तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? जोहान, वो रो रही थी। जोहान की प्रिंसेस, बताओ क्या हुआ मेरी बिल्ली आंखों वाली को? तुम जाओ ना, मुझसे दूर चले जाओ ना, मेरे दूर से भी मत गुजरना, मुझे भूल जाना ना। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा किसी चीज़ में भी, समझी? बस ये बताओ चाहती क्या हो तुम? जोहान ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। तुम छोड़ दो मुझे, वो मुश्किल बोल पाई थी।
اس کے دل میں درد ہوا تھا یہ کہتے ہوئے وجہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ دنین میرے ضبط مت آزماؤ، بتاؤ جو پوچھا ہے۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ اوکے ٹھیک ہے، زحان نے کہتے ہی اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ میں نے کہا ہے چھوڑو مجھے، نیچے اتارو ورنہ کیا پرنسس، ورنہ میں جان لے لوں گی اپنی، اور اس کا انجام میں پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں۔ زحان چھوڑو مجھے، نہیں رہنا تمہارے ساتھ، دور رہو مجھ سے۔ وہ ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی لیکن زحان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لڑکے چھوڑ دے میری بیٹی کو، چھڑوا کر دکھا دے ہمت ہے تو تجھ میں، زحان نے کہا تھا۔ زحان چھوڑو مجھے، جسٹ شٹ اپ، منہ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ اب آواز نکالی بھی تو تم نے۔ وہ دھاڑا تھا اور خالد شاہ نواز نے پھلوں کی ٹوکری میں پڑا چاقو تیزی سے اٹھایا تھا اور زحان کے کندھے پر دے مارا تھا۔ زحان، تنین چیخی تھی۔ بابا چھوڑیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی جان لے لوں گا میں، خالد شاہ نواز نے غصے سے کہا تھا اور زحان نے اسے دور پھینکا تھا۔ بس کریں آپ لوگ، میری وجہ سے لڑ رہے ہیں نا، میں خود کو ہی ختم کر دوں گی، پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، گھٹیا انسان۔ زحان باہر کی جانب بھاگا تھا۔ چھوڑو مجھے، خالد شاہ نواز چلایا تھا۔ دنین نے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی تھی۔ دنین رکو، وہ چلایا تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کیے اس کے پیچھے لگائی تھی۔ دنین رک جاؤ، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ اس کی گاڑی کے برابر اپنی گاڑی لایا تھا اور دنین نے مزید سپیڈ بڑھائی تھی۔ دنین رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، ڈیم اٹ۔ وہ غصے سے چیخ رہا تھا لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی اور کچھ دیر تک ایسے ہی گاڑی چلتی رہی تھی۔ دنین نے اونچائی پر ایک پہاڑ پر جا کر گاڑی روکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتری تھی اور بھاگتے ہوئے پہاڑ کے کنارے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ نیچے ایک گہری کھائی تھی۔ زحان گاڑی روکتا تیزی سے بھاگتا اس کے پاس آیا تھا۔ میرے پاس مت آنا، میں کود جاؤں گی، دور رہو مجھ سے، میں نے جان دے لینی ہے تمہاری، پیچھے ہو جاؤ دنین۔ ہرگز نہیں، زحان نے کچھ لمحے سوچا تھا۔ تمہیں میری قسم دنین، پیچھے ہو جاؤ، پرنسس گر جاؤ گی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں کھائی کو دیکھ رہی تھی جب زحان نے آہستہ سے پیچھے سے جا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا اور اسے پیچھے لایا تھا۔ چھوڑو مجھے، بس کرو، اب ڈرامہ ختم ہو گیا نا، باقی کا گھر جا کر دکھانا مجھے اپنی پرفارمنس، اوکے؟ شاباش، چلو۔ نہیں، چھوڑو، دور رہو مجھ سے۔ زحان نے اسے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ گھر چلو، بات کرتا ہوں تم سے، چھوڑو مجھے ورنہ۔ اچھا وجہ بتاؤ، چھوڑ دوں گا میں تمہیں، اوکے؟ نہیں، کیا مجھے کسی چیز کا خطرہ ہے یا تمہیں ہے؟ زحان نے گاڑی چلاتے پوچھا تھا اور دنین نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اس کا مطلب میں ٹھیک سمجھا۔ اب یہ بتاؤ مجھے ہے یا تمہیں پرنسس؟ ایسی بات نہیں ہے پرنسس، بہت اچھے سے جانتا ہوں تمہیں، آخر شوہر ہی تو جانتا ہے بیوی کو۔ اب بتا دو کہ تمہیں یا مجھے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ گھر چل کر پوچھتا ہوں تم سے، تسلی سے۔ اتنی آرام سے گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ وہ بات بدل گئی تھی۔ تمہارا کیا بھروسہ، چھلانگ لگا دی چلتی گاڑی سے تو اس لیے آہستہ چلا رہا ہوں کہ اگر لگا بھی دی تو کوئی ہڈی وڈی ہی ٹوٹے گی، زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا ابھی ایسا، ابھی مطلب ارادہ تھا، ٹھیک ہے، لگا کر دیکھ لو، مرو گی نہیں، ہڈی ہی ٹوٹے گی، لیکن بتا رہا ہوں بہت درد ہوگا اور مجھ سے خدمتوں کی کوئی امید مت رکھنا۔ مجھے یہیں اتارو۔ میں نہیں اتار رہا، چھلانگ لگا دو، ویسے بھی تمہیں بہت شوق ہے لگانے کا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔